Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Reba Akram. Today we are going to start the chapter number 3 of biology, the classification of living organism. First of all, we are going to start with the definition of classification. The classification is the arrangement of animal and plants in taxonomic groups according to their observed similarities. क्या होती है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म की इनटू ग्रुप्स और सबस ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर करेक्टर्स। उनके सिमिलर करेक्टर्स के मुताबिक हमने क्लासिफाई करना है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और उनके सब ग्रुप्स में। नाउ कम टू द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज इन अ ब्रॉड सेंस द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन बट मोर स्ट्रिक्टली द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अब मौजूद नहीं है दुनिया में। ठीक है, टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या है? टेक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं और उसको नाम भी देते हैं। कौन से नाम? जो कहलाते हैं साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देन कम टू द होमोलोगस स्ट्रक्चर डेफिनेशन। होमोलोगस बेसिकली ऑर्गन्स क्या होते हैं या होमोलोगस होता क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं विच आर सिमिलर ऑरिजिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि सिमिलर ऑरिजिन उनका सिमिलर होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी उसका डिफरेंट होगा और फंक्शन भी डिफरेंट होंगे। जिसके एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं, the arm of human, the wing of bird. Both are playing the same function but different in structure or origin इनका same है. Now come to the third topic, unit of classification. Classification को हम किस तरह से divide कर रहे हैं? The 7 level of classification from the broadest to the most specific are kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Now come to the species. Species क्या है? It is a group of living organisms consisting of similar individual capable of exchanging gene or interbreeding. The species is the principal natural taxonomic unit ranking below a genus and denoted by a Latin binomial. Basically, species क्या होती है? Species is a group of living organism. एक living organism का group है which has numerous physical features, जिसके पास numerous physical features हैं in common and capable of their interbreeding, और वो अपनी interbreed करता है मतलब reproduce करता जाता है and produce fertile offspring, और fertile offspring बनाने की capability रखता है। Now come to the genera. Genera closely related to the species are grouped together and form genera. मतलब जो closely related species जब group बना लेंगे तो वो genera बनाएंगे। इसी तरह families, डिफरेंट जेनरा ग्रुप टुगेदर, जब डिफरेंट जेनरा आपस में मिलेंगे तो वो फैमिली बनाएंगे, और डिफरेंट फैमिलीज जब ग्रुप बनाएंगी तो वो ऑर्डर फॉर्म करेंगी। इसी तरह डिफरेंट ऑर्डर जब ग्रुप फॉर्म करेंगे तो वो क्लास बनाएंगे। डिफरेंट क्लासेस जब ज्वाइन होंगी तो वो फाइलम बनाएंगी, और जब फाइला ग्रुप करेगा एक दूसरे से तो वो किंगडम बनाएगा। तो इसी तरह से लेवल ऑफ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बनेगी। Now come to the binomial nomenclature. Basically, binomial nomenclature क्या है? Binomial nomenclature is a two-term naming system. Two-term naming system मतलब scientific name देने का तरीका है किस तरह से? That uses two different terms of name: the species, plant, animal, and living organism. Binomial nomenclature is also known as binary nomenclature, and the two consist of the generic epithet, which is genus, and the species, the specific epithet, which indicates the species itself. Means binomial nomenclature basically ये modification एक तरीका है नाम देने का, किसी भी living organism को biological name देने का, उसको scientific देने का. Every living organism having the scientific name, which is divided into the two parts. The first part is called the genus and the second part is called species. The first part, which is called the genus, is right with the capital letter, and the second part, which is called the species, is written in the small letter. Like Homo sapiens. Homo sapiens is the biological name of human being, and Homo is the genus, and
sapiens is their species. Now come to the five kingdom system of Robert H. Whittaker. रॉबर्ट विटेकर्स ने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश की थी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो उसने 1969 में पेश की थी. सबसे पहले उसने उसका पॉइंट क्या था, वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थी. किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, जो कि बैक्टीरिया कहलाता है. इन मेजर फाइव किंगडम्स में इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया था. इस सबसे पहले हम अगर बात करें किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स विद ऑटो और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब कि इसका ये है कि यूनिसेलुलर जितने भी वन सिंगल सेल प्रोकार्योट्स हैं, प्रोकार्योट्स आर दोज which do not have distinct nucleus, उनके अंदर मौजूद नहीं होता, that's are called prokaryotes. और with auto and heterotrophic nutrition, auto and heterotrophic nutrition are the two mode of nutrition which is present in the living organism. इसका मतलब ये हुआ कि auto means self, खुद से बनाने वाला, और hetero means किसी पे डिपेंडेंट है अपनी न्यूट्रिशन के लिए. तो दे आर इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स विद ऑटो एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ लिविंग. इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे हमारे पास वायरस, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. नाउ कम टू द किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स. इसमें तमाम यूकेरियोट्स मौजूद हैं. यूकेरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब वाज़ेह होते हैं, with auto and heterotrophic mode of nutrition which are no longer classified as animal, plant and fungi. मतलब वो एनिमल्स जो कि वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि ना वो एनिमल्स में क्लासिफाई हो सकते हैं, प्लांट में हो सकते हैं, ना फंगस में हो सकते हैं. इसकी एग्जांपल यूग्लिना एंड पैरामीशियम की है. नाउ कम टू द थर्ड वन, किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले इट इंक्लूड्स ऑल नॉन क्लोरोफिलस. नॉन क्लोरोफिलस जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद ना हो. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट, ओके, वो मौजूद ना हो. मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक थैलोफाइट्स हैविंग chitin cell wall and कोइनोसाइटिक बॉडी कॉल्ड माइसीलियम. मतलब फंगस की बॉडी आपको क्या होती है, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. जो थ्रेड लाइक कोइनोसाइटिक कहलाती है बॉडी, वो माइसीलियम कहलाती है. बेसिकली इसकी एग्जांपल है एग्रिकस और ईस्ट, जो किंगडम फंजाई के अंदर आ जाएंगे. और ये सारे नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं. नाउ कम टू द किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे इट इंक्लूड्स ऑल क्लोरोफिलस, multicellular autotrophic eukaryotic living organism having cellulose cell wall. मतलब इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होगी और ये क्लोरोफिलस भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे, मतलब एक से ज्यादा सेल रखाने वाले, ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपनी न्यूट्रिशन को डिपेंडेंट होंगे, और यूकार्योटिक मतलब इनका न्यूक्लियस प्रॉपरली फॉर्म्ड होगा. इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं एप्पल और सनफ्लावर एंड एक्सेट्रा. नाउ कम टू द किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया बेसिकली में कौन कौन सी चीजें लाई करेंगी, इट इंक्लूड्स ऑल नॉन क्लोरोफिलस. इसमें भी नॉन क्लोरोफिलस है, मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दे आर नॉट थैलोफाइट्स एज फंजाई. सो दे आर एंड हैविंग नो सेल वॉल. इनकी सेल वॉल मौजूद नहीं होगी एज इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. तो ये इसलिए तीनों चारों से अलग हैं. इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा हाइड्रा, अर्थवॉर्म एंड मैन. Now come to the classification, modern classification, modification of the changes proposed by the Merkulis and Shorts in five kingdom system of R.H. Whittaker. R.H. Whittaker की theory को modified किया था Merkulis and Shorts ने. सबसे पहले उसने क्या कहा था, they are the two American biologists. Basically according to there are five kingdom of classification. Number first are kingdom prokaryotes. बेसिकली किंगडम प्रोकार्योट्स क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकार्योट्स. जितने भी प्रोकार्योट्स मौजूद हैं वो इसके अंदर आएंगे, जैसे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. एज आई टोल्ड यू बिफोर, प्रोकार्योट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं होता, प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर कंटेंट मौजूद होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी. नाउ कम टू द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा. प्रीवियस में किंगडम प्रोटिस्टा था, नाउ कम टू द न्यू नेम Protoctista. It includes all the eukaryotes
जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस प्रॉपर होते हैं, which are no longer classified as animal, plant and fungi. ना ये एनिमल्स है, ना प्लांट है, ना फंजाई है. इसके एग्जाम्पल आ गए यूक्लिना, पैरामीशियम, क्लैमाडोमोनास एंड ईस्ट. Now come to the kingdom fungi. It includes non-chlorophyll, multicellular and eukaryotic organism having cell wall and coinocytic body called mycelium. इसके अंदर तमाम क्या आ जाएंगे, नॉन क्लोरोफिलस, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और हैविंग सेल वॉल. इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होगी लेकिन इनकी बॉडी क्या होगी, कोइनोसाइटिक होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, माइसीलियम. इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा एग्रेकस. एग्रेकस बेसिकली इज कॉल्ड मशरूम. ठीक है. नाउ कम टू द किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी क्या है, इट इंक्लूड्स द क्लोरोफिलर, जिसमें आपके प्लांट आ जाएंगे. दे आर क्लोरोफिल्स मतलब हैविंग द ग्रीन पार्ट ऑफ द बॉडी. मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल पे कंसिस्ट करते हैं. यूकैरियोटिक होते हैं और सेल वॉल मौजूद होती है क्योंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है. एंड जाइगोट डेवलपिंग इनटू द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के अंदर इनके जाइगोट डेवलपमेंट होगी, जिस तरह से फ्रूट्स बनते हैं इसी तरह से. इसके एग्जाम्पल में एप्पल एंड सनफ्लावर है. नाउ कम टू द लास्ट वन, किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया क्या है, इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस, multicellular eukaryotic organism having no cell wall, as the plant cell contain the cell wall. In animal there is no cell wall present. An example of the kingdom animalia is hydro, earthworm and man. So thank you for listening, students. And now we are next topics I'm going to share soon. Thank you.